Greetings, beloved. Welcome to another episode of Vessels of God podcast. This is your host, Evans Francis, and today we have another vessel that God has been using in his vineyard for over 2 decades. Today we have Pastor Emmanuel Golar, who is not only a pastor, but also a lyricist, a composer, and God has been mightily using him not only in India, but in abroad, and God is using and doing wonderful things through his ministry. So, thank you so much, Pastor, for taking your time and joining us in our podcast. And thank you so much for taking your time and spending your time with us. And I believe that this podcast will be a great blessing for our viewers. Thank you for having me, Pastor Evans. And I give glory to God because He is using a vessel like me for His glory. Thank you so much. ओके पास्टर मेरा सवाल आपसे पहला तो यही रहेगा कि कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फैमिली. Sure. Uh, I have a mother and father. Both of them are ओके. in Mumbai. I have an elder sister who's married. She's in Andhra Pradesh with her husband and 3 children. And then it's me, and I'm married now. I have a wife and 2 children, Elzaira and Eliana. I have a younger brother and younger sister. Okay. And can you share about your ministry, how people can follow you and connect with you, which platforms are you on, so that our viewers can connect with you and can be blessed by your ministry. Well, if you talk about my songs, you can go and listen to my songs on Emmanuel Golar's YouTube channel. And of course, if you want to connect with me, you can connect with me through Facebook, through Instagram. All the three handles are on the same name, Emmanuel Golar. And apart from that, if you want to connect with our ministry, we have a page called Hosanna Church Mumbai, which is in Dharavi. We have a YouTube page and we have an Instagram page with a Facebook page too. So people who are Okay. watching us, you can connect with us on those pages. Okay. So, Pastor, can you share with us about your journey? Like, कैसे आप प्रभु में आए, कैसे आपका यात्रा स्टार्ट हुआ परमेश्वर के साथ, एंड आपने व्हाट वर दोज रीजंस कि यू चोज टू फॉलो जीसस. Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अ, मेरे पिताजी और मम्मी जो है बहुत ही लो बैकग्राउंड या नॉट इवन मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं. वी वर नॉट वेल टू डू फैमिली. लेकिन परमेश्वर ने मेरे पिता से जब वो मम्मी एंड पापा जो है बच्चों को खो रहे थे, मतलब मेरी बड़ी बहन से पहले मेरी मम्मी पापा ने 3 बच्चों को खोए. एंड उसके बाद बड़ी बहन का होना हुआ. उसके बाद बड़ी बहन के बाद और एक बच्चा मतलब मम्मी पापा ने खो दिए, वो गुजर गए. एंड उसके बाद पापा ने निर्णय लिया कि मतलब मुझे क्या था समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है. एंड देन उसके बाद किसी ने मम्मी को परमेश्वर का गॉस्पेल सुनाया जब वो रोड पर कचरा चुनने की काम करती थी. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि वी डोंट कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. माय डैड वाज अ स्वीपर on the street, and my mother was a rag picker on the street. And and somebody came and gave gospel to them, and that's how they came to Lord just before my birth. एंड उसके बाद मेरा पैदा होना हुआ. और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे परमेश्वर के काम के लिए सौंप दिया, क्योंकि पिताजी ने परमेश्वर से वादा किया था कि अगर जो भी पैदा होगा तो वो मैं उस बच्चे को आपके काम के लिए दे दूंगा कर कर. सो वैसे मैं पैदा हुआ. और लेकिन जैसे कि हम संसारिक लोग मतलब हम संसार में हैं, हम कभी कभार परमेश्वर को दिए गए वादा को हम क्या कर देते हैं, नकार देते हैं. मतलब है ना, उसको भूल ब्रेक कर जाते देते हैं. हैं. बहुत बहुत जी. इजीली हम ब्रेक कर देते हैं. सो उसी तरह लेकिन लेकिन अचानक से फिर पिताजी को लगा कि नहीं,
मैंने वादा किया था परमेश्वर से, तो मैं प्रभु के पास जाऊँगा जब मेरे पैदा होने के बाद। तो वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर बने और मुझे सेवकाई के लिए डेडिकेट किए। और मैं पैदा होने के बाद में हम धारावी में रहा करते थे। ये पिताजी और मम्मी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और ओके। बीजापुर नाम का एक गांव है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर पिताजी जैसे कि वो बहुत छोटे थे तब वो मुंबई आ गए थे, तो हम मुंबई में धारावी में रह रहे थे। और धारावी में रहने की वजह से हमारे लैंग्वेज जो है, बोली जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब इवन अभी भी अगर आप मेरे हिंदी को देखोगे तो कहीं ना कहीं रीति से उस हिंदी में आपको थोड़ा सा टपोरी काइंड ऑफ स्टाइल का भाषा आपको सुनाई देगा। वो इसलिए नहीं है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूँ, वो इसलिए है जैसे कि पौलुस कहता है कि है ना, मतलब जैसे दाऊद भी कहता है कि आप जिसके साथ चलोगे आप वैसे ही बनते हो, है ना। तो आपका रहना मतलब मैं वहां पर पला बड़ा हूँ, इस वजह से मेरी बोली ऐसी है। सो आप जी, जो जितने लोग देख रहे हैं मुझे, तो आप मुझे जज ना करें मेरे मेरे शब्द के द्वारा, क्योंकि हम धारावी के झोपड़े में पैदा हुए हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मतलब मेरा जर्नी के विषय में, सो बहुत ही कम एज से मैंने गीतों को गाना शुरू किया। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था, लगभग 4-5 साल के आसपास में था। तो मैं जब मम्मी के साथ में, मम्मी और डैडी मुझे चर्च लेके जाया करते थे, धारावी में चर्च ऑफ गॉड, वो आज भी है वो चर्च, वहाँ पर मैं जाता था। और वहाँ पर जाने के बाद में मैं छोटा बच्चा था, लेकिन मैं लोगों को देखता था गाते हुए, एंड लोगों को देखता था वचन देते हुए। तो उस तरह से पता नहीं अचानक से मेरे अंदर एक गाने की इच्छा उठी। और मैं स्कूल भी जब जाता था तो मैं स्कूल में भी स्कूल्स के हिम्स गाया करता था। और साथ ही साथ तो मेरे को पिताजी ने चर्च में, मतलब है ना, भले आप जो स्कूल में आपको हिम्स सिखाए जाते थे, अर्ली मॉर्निंग जब हम स्कूल जाते थे तो हर दिन हमें नए नए हिम्स को सिखाया जाता था, क्योंकि मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा हूँ। सो तो लाइक बाइंड अस टुगेदर लॉर्ड, लाइक गिव मी ऑयल इन माय लैम्प, कीप मी बर्निंग, प्रेज हिम, है ना। सो ऑल दिस सॉन्ग्स, है ना, मैं जब स्कूल में जो हिम्स में हम लोग असेंबलीज में गाया जाता था, वही गीतों को मैं चर्च में आकर है ना संडेज को गाया करता था। तो मुझे पता लगा कि मैं गा सकता हूँ। और देन एक परमेश्वर के अद्भुत दास है जिनका नाम जो अभी नहीं है, मैं वो परमेश्वर के साथ हैं, उनका नाम है पास्टर एसन्ना। वो तेलुगु मतलब जो आंध्र प्रदेश में ही वॉज द रिवाइवलिस्ट, मतलब उनके द्वारा अद्भुत रिवाइवल है ना आंध्र प्रदेश में हमने देखा है। और उनके गीत भी बहुत से लोग जो तेलुगु लोग हैं मेरे जो सुन रहे हैं, तो वो लोग जान सकते हैं एसन्ना अंकल के बारे में। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी सभा में बोला कि बेटा तू गा दे। और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतने लोगों के बीच में कैसे गाऊं, क्योंकि मेरा क्राउड जो था बहुत कम था। जब मैं चर्च में गाता था तो 20, 30, 25 लोग होते थे, है ना। तो लेकिन ये मीटिंग में अचानक से मैं देख रहा हूँ कि हजारों में लोग बैठे हुए हैं और मुझे गाने के लिए कहा गया है। तो मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था, तो मुझे जब अंकल एसना ने कहा कि आपको गाना है, तो मैंने गाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना बाय देवदूत चंद्रा के द्वारा लिखा हुआ, जो इज अ वेरी गुड लिरिक्स राइटर, जिनका एल्बम का नाम था बुलाहट। मैं नहीं जानता कि आप लोग जानते हैं या नहीं। ये परमेश्वर के दास जो देवदूत पास्टर जो अभी इस संसार में नहीं है, वो परमेश्वर के साथ हैं। पिछले हफ्ते ही उनका देहांत हुआ था। लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीतों को लिखा है। हिंदुस्तान के मसीह जवान जाओ जाओ जाओ, सुसमाचार सुनाओ, है ना, पहले ना पता था मुझे, ये कहानी है मेरे लिए, ये गीत हो गया, है ना। फिर बहुत सारे अद्भुत गीत, और जो पास्टर विजय बेनेडिक्ट का जो गीत है ना, डरना नहीं वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं वो तुम्हारे साथ है, ये सारे काफी सारे गीतों को, है ना, पास्टर देवदूत जी ने लिखा था। तो उनका एक गीत मैंने इन इतने सारे लोगों के बीच में गाया। और वो गीत मुझे आज भी याद है, हिंदुस्तान के मसीह जवान जाओ जाओ जाओ, सुसमाचार सुनाओ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, मैं उस समय में केवल गाने के लिए गा रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं किसके लिए गा रहा हूँ, क्यों गा रहा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मैं अपने एज में जब मैं बढ़ रहा था, मैं और स्लोली स्लोली मुझे है ना, मतलब काफी अलग अलग पास्टर्स के साथ में मिलने, मेरा उठना बैठना हुआ।
क्योंकि मेरे पिताजी पास्टर हैं। सो तो फिर वैसे करके मैंने अलग-अलग, जैसे कि पास्टर एंथनी राज हो गए, पास्टर डैनियल राज हो गए, पास्टर विजय बेनेडिक्ट हो गए, अनिल कांत अंकल जी हो गए। अगर आप तमिलनाडु से आते हैं तो फादर ब्रैकमन्स हो गए, है ना? इन सारे लोगों के साथ में मैं कीबोर्ड बजाना शुरू किया। पास्टर वीरेंद्र पाटिल जी जो है, और धारावी में काफ़ी सारे वर्शिप लीडर्स हैं, और उनके अलावा जो हमारे जो सीनियर्स वर्शिप लीडर्स हैं, जैसे कि अभी जो सैमसन अटसुले पास्टर जी है ना, आमोस तिवड़े जी है, इन सारे लोगों के साथ में मैं एज अ कीबोर्डिस्ट, है ना, मैं जाया करता था, है ना, मैं कीबोर्ड प्ले किया करता था। लेकिन अचानक से जब मैं अब बढ़ रहा था, तो मुझे एक परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने मुझे एक बात को सिखाई, और उन्होंने ये कहा कि इमानुएल, तुम्हें कीबोर्ड को पैसे के लिए नहीं बजाना है। सो आई वाज लाइक, पैसे के लिए नहीं बजाना है, मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप जो भी कुछ करोगे, वेदर आप वर्शिप कर रहे हो, गा रहे हो, या कीबोर्ड बजा रहे हो, ये परमेश्वर के लिए आपको करना है। सो मैंने बोला, ओके, परमेश्वर के लिए मैं करूंगा सो सही, लेकिन फिर मेरा पेट कौन भरेगा, है ना? हम मतलब फिर पैसे कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात सिखाई, मैं चाहूंगा कि उनका नाम मैं लूं। उनका नाम है कीर्ति सगातिया, है ना? वो परमेश्वर के अद्भुत दास, बहुत ही गीत आप उनके सुने होंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन उन्होंने गाया है, लिखा है अजय चौहान ने। फिर जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है, और जिसने मसीह को पाया वो पाक है ना पाक नहीं, ये सारे गीत भाई कीर्ति सगातिया ने गाया है। और खूबसूरत रीति से पास्टर अजय चौहान ने इस गीत को लिखा है। तो उन्होंने मुझे इस बात को सिखाया कि यू नीड टू वर्शिप गॉड, यू नो, बिकॉज यू लव हिम, है ना? आपको परमेश्वर की आराधना इसलिए करना है क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, ना कि पैसे के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद जो भी मैं करूंगा, वो पैसे के लिए नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल यीशु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए करूंगा। वो दिन जो मैंने निर्णय को लिया, आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी से, कोई नहीं है जो ये कह सकता है कि मैंने डिमांड किया है ना? अब मैं सारे गांव गांव में जाकर हमने परमेश्वर का सुसमाचार गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा हमने दिया है। और क्या बोलते हैं ना, शहरों में हो सकता है, और काफी परमेश्वर ने, जैसे कि पास्टर इवांस ने कहा कि परमेश्वर ने, है ना, बहुत सारे दुनिया में, मतलब अलग अलग देशों में मुझे ले गया, और मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। Amen, amen. या When I was listening to you and एक चीज़ मुझे जैसे आपने बोला कि मेरे शब्दों को सुनकर जज ना करें, इट्स समथिंग कि परमेश्वर मूर्खों को चुनता है कि बुद्धिमान को दिखाए कि ही इज़ अ लिविंग गॉड and it's an awesome testimony, pastor, and I believe that this is just a beginning. God will open mighty doors for you, bigger occasion and meetings for you. And abhi aap as you have shared with me that you are pastoring a church also, and so nowadays if you see a lot of divorces are taking place, lot of issues happening in the church. So in your church, कैटेगरिकली आपके चर्च में लाइक इंटरकास्ट मैरिज हो गया या इंटरफेथ मैरिज हो गया, ऐसे सिचुएशंस को आप कैसे डील करते, या हाउ यू इन्वेस्ट टाइम इन योर यूथ्स कि ये चीज़ें ना हो, लाइक दे शुड नॉट बी अनइक्वली योक्ड, तो वाह, उसके लिए आप क्या प्लान करते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन पास्टर जी। सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं पहले दूसरों की बात नहीं, मैं पहले अपनी बात को कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे कैसे अपनी पत्नी से मिलने के लिए सहायता किया। मैं 2009 में बाइबल कॉलेज, एसएबीसी सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज जो बैंगलोर में है, मैं वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। मैं 3 साल वहाँ पर पढ़ाई किया। मैं अपनी बीटीएच वहाँ से कंप्लीट किया। वहाँ पर एक प्रोफेसर है जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट को बोला गया था। उनका नाम पास्टर रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल टी कोशी मेरे प्रोफेसर है। वो अभी प्रेजेंटली हमारे कॉलेज के डीन है ना, वन ऑफ द डीन इन एसएबीसी सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज। सो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला गया था, मेरे को आज भी वो डेट याद है,
जून के महीने में 2009 में उन्होंने एक बात कहा था कि योर मैरिज कैन ईदर मेक यू और ब्रेक यू। आपका शादी आपको बना सकता है या तो आपको तोड़ सकता है। तो मुझे समझ में नहीं है ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों बोला गया था। बाय द वे ये उन्होंने पर स्पेसिफिकली मेरे लिए नहीं बोला गया था। एज अ क्लास वी वर 29 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एंड एज अ क्लास उन्होंने ये बात को बोली थी। और उन्होंने बोलने के बाद में मैंने उस बात के ऊपर बहुत ही पॉन्डर मतलब सोचा उस बात के बारे में। एंड मैंने तब से ही प्रभु परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु कि मुझे तू सहायता कर, क्योंकि मैं जवान हूँ और आंखों की अभिलाषा से तो मुझे दूर रख बहुत से। क्योंकि मैं जैसे पहले भी आपसे कहा कि मेरे पिताजी पास्टर हैं, और क्या कहते हैं ना, मतलब पास्टर होने की वजह से है ना, पास्टर्स प्रपोज मतलब एज अ पास्टर सन आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ प्रपोजल्स, दैट वाज क्रिश्चियन प्रपोजल्स। बट उसके पहले अगर मैं जाऊं कॉलेज के दिनों में, सो बिकॉज आई वाज इन अ कॉलेज डेज, यू नो, आई वाज मतलब मुझे प्रॉपर टीचिंग नहीं थी, तो मैं भी काफी गलत चीजों में फंसा हुआ था। वापस से मैं कहना चाहता हूँ फंसा हुआ था, लेकिन अभी नहीं। सो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पास्टर का बेटा हूँ। कहीं ना कहीं से तो गिल्ट फील हो रहा था कि मतलब मैं अनयूकली यूकली योग हो रहा हूँ किसी और के साथ में। सो है ना, अभी मैं अपने जवान बच्चों के साथ में या हमारे चर्च में, अगर आप कह रहे जैसे आपने प्रश्न पूछा, अगर उसके बारे में अगर मैं बताऊं, हमारे चर्च में स्पेशली 99% आर हीदन पीपल, लाइक यू नो, दे आर जेंटाइल्स, दे कम फ्रॉम अदर फेथ। सो जिसका शादी हो चुका है उनके उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने जवान बच्चे को, जैसे आपने पूछा मुझसे जवान बच्चों के बारे में, इन सारे जवान बच्चों को हम एक ही बात कहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के रास्ते को चुने हैं। आपको परमेश्वर में रहने वाले लड़का हो या लड़की हो, इनको ही आपको चुनना है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ लव मैरिज। If you want to love, no problem, but there is a line. You know, if you like somebody, you need to tell your parents, look, I like that boy or a girl. Go to your parents, go to your elders, go to your church pastor, tell them that, look, we want to get married to so and so person. uh, if they are if they are believer of Jesus, if they believe on Jesus, we have no problem. But when they say that they are loving somebody else, you know, XYZ, so we are not for it. We try to counsel them, look, you know, आप अभी जवान हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी आपको बनाए या आपकी शादी आपको तोड़े? तो वो बहुत से लोग, जवान लोग आजकल यही क्वेश्चन उनके, वो लोग बोलते हैं, पास्टर जी मेरे पिताजी भी नहीं जानते थे परमेश्वर को, मेरी मम्मी जानती थी, लेकिन मम्मी ने शादी तो किया था ना। अरे बाबा, वो जमाने की बात है। अभी हमको परमेश्वर को, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं, भले आप लड़की हो या लड़की हो, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं, आपको इस बात को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आप किसी और समाज के लोग हो सकते हैं, किसी और कल्चर के लोग हो सकते हैं, इनके साथ आपको जुड़ना जरूरी नहीं है। आप नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये बाइबल का सिद्धांत है ना, कि हमें हमें सिखाया गया है कि हमें किसी और के साथ नहीं जुड़ना है। तो आप जानना जरूरी है ना। अगर आप एक मूर्ख के साथ चलोगे तो आप मूर्ख ही बनोगे। बाइबल क्लियरली कहता है, भजन में कहता है ना, नीति वचन में कहता है कि है ना, सुलेमान राजा कहता है, यदि आप बुद्धिमान के साथ चलोगे तो आप बुद्धिमान चलोगे। तो मुझे बताओ कि आप हीदन व्यक्ति के साथ या जेंटाइल के साथ अगर आप शादी करोगे, वो अपने तरीका से काम करेगा और आप अपने तरीके से काम करोगे, उस शादी में देयर विल बी नो पीस, देयर विल बी सो मच ऑफ क्लैशेस, देयर विल बी सो मच ऑफ डिविजन्स, है ना। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आप फॉर इट है, आप ऐसे शादियों से, आई एम नॉट फॉर इट, आई एम अगेंस्ट इट, यू नो। अगर बहुत से लोगों की शादी में जो परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर ऐसे रास्ते में गए हैं, मैं उन शादी में नहीं गया हूँ, फ्रैंकली टू स्पीक, है ना, मैं नहीं गया हूँ। मैं आई डोंट वांट टू पुट माय हैंड इन सम थिंग्स व्हिच इज नॉट राइट, है ना, बिकॉज आखिरकार मुझे परमेश्वर के सामने खड़े होकर, है ना, एक दिन जाकर मुझे जजमेंट के सामने खड़े होकर मुझे आंसर देना पड़ेगा। सो परमेश्वर कहेगा मुझे कि उस व्यक्ति की शादी में तू गया हुआ था जबकि वो शादी सही नहीं थी, तो उसके बारे में मैं आंसर क्या दे सकता हूँ। हाँ, एक ऐसा समय था जब मैं नहीं जानता था परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, तब मैं गया हूँ। लेकिन अभी आई ट्राई टू, मैं डिसीजन जो करता हूँ, मैं बहुत ही एनपिक डिसीजन करता हूँ, कहाँ पर मुझे जाना है,
कैसे मुझे काम करना है। इनफैक्ट ये सेशंस के लिए भी मैंने बहुत ही प्रार्थना पूर्वक ये सेशंस को मैं है ना पास्टर इवान से आप पूछ सकते हैं, इतना इजीली इसके लिए मैं रेडी नहीं था। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा, शब्द है ना बहुत जज करते हैं लोग आजकल। लेकिन मैं जैसे पास्टर जी ने कहा कि सच में परमेश्वर मूर्खों को चुनता है। अगर मैं अपने कहानी के बारे में बताऊं तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जो प्रश्न को है वो प्रश्न के मैं साथ में रहना चाहता हूं। I am not for it, Pastor Evans. I am against intercaste marriage. I am against if a young boy and a girl come and tell me that I want to get married to so and so person. I say the first question I ask them is whether that person or that he or her is a believer of Christ. That's how I deal. If they say no, they are not. So I try to counsel them. Me and my wife both are in ministry. We counsel them. My parents counsel them. So most of the young people come to me and I counsel them. I tell them, look, this is not right for you. उसके बाद भी अगर आपको निर्णय लेना है तो वो आपके हाथ में है, आपको परमेश्वर के सामने जाकर आंसर देना होगा, है ना? एंड दैट्स योर लाइफ जी, नाउ। यस। जी. Uh, Actually, when you were sharing this, the one of the common thing, like आप जब बता रहे थे, one of the common reason lot of youngsters that do these things, like it's big. I just feel like it's the education, like बहुत सारा churches ये सारे चीज़ों को सिखाता नहीं है और बच्चों को इसका नॉलेज नहीं रहता और दे गेट द नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज दे कॉपी आउटसाइड एंड चर्चेस में सेक्स बिफोर मैरिज एंड लिविंग इन प्यूरिटी ये सारे टॉपिक्स पे सेक्स वर्ड भी यूज़ करने के लिए बहुत सारे चर्चेस में शर्म आती है सो चिल्ड्रन गेट टू सी ऑल दिस थिंग्स एंड like we have a course called courtship to marriage so this is like 7 hours course 16 lessons where we have taught everything what to look for in a boy what should look for in a girl and as you said mentors when you are getting into a relationship you should have accountability you should have pastors involved and other people so that you don't disturb and destroy the calling upon your life so these things are not been taught but what I have seen is that when people come to know about this course they say only one thing हमको तो सब पता है like you went to Bible college you studied 3 years and that's why you are here and you can interpret word of God says कि dividing the word of God in the right way बहुत सारे लोग वचन को गलत तोड़ मरोड़ करते हैं बट इफ यू हैव द नॉलेज कि क्या सही है क्या गलत है सो आई फील लाइक दिस इज मिसिंग इन द चर्च टुडे कि इन्वेस्टमेंट अपॉन द यूथ्स और उनको सिखाना सही तरह से ग्रो अप करना बहुत सारे चर्चेस ओवरलुक करते दे जस्ट थिंक अबाउट द एल्डर्स बड़े बट बच्चों को ओवरलुक भी किया जाता है बहुत बार दैट इज जस्ट माई व्यू आई जस्ट फेल्ट कि आई जस्ट शेयर एंड Aj, like I'm staying in Nagpur. I'm connected with a lot of people from Mumbai, and the thing is like we receive so many disturbing things. We get to know disturbing things like leaders, worship leaders, pastors having affairs and divorce, and like it feels like चर्च में रहते हुए भी उनको वो चीज़ों की अनुमति मिलती है so, what is your view कि as a leader, doesn't matter pastor हो, worship leader हो, youth leader हो, youth pastor हो, anybody in position in church, when they are caught in sin or when somebody informs कि this is wrong is happening and still if they are giving the podium, they are giving the pulpit, in your church like because we can't discuss about other churches as per you your views कि क्या क्या होना चाहिए like जब फर्स्ट sin ऑफ ऑल, is been allowed in the church नो, सिन इज नॉट अलाउड इन द चर्च फॉर श्योर। एंड जैसे yeah आपने कहा कि ओपनली चर्च में डिस्कशन होना चाहिए। अगर चर्च में डिस्कशन नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? एंड exactly अगर चर्च में हम डिस्कस नहीं करेंगे इस सारे टॉपिक्स को लेकर, तो फिर डेफिनेटली हमारे जवान बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पर जाएंगे या संसार में चीजों में जाएंगे जहां पर उनको लगता है कि यहाँ से मुझे आंसर मिल रहा है। लेकिन मैं जी जैसे कि मैंने अपने जवान बच्चों को बोलता हूँ, हर दिन एक प्रोवर्ब्स एटलीस्ट पढ़ो, है ना? लाइक जी फॉर एग्जांपल आज का
क्या बोलते हैं ना, जो डेट है 5 तारीख है, तो Fifth. पांचवा प्रोवर्ब्स आप पढ़ो, मतलब देर आर 31 डेज इन अ मंथ, है ना. Yeah. सो या सम टाइम इट 30 days ऑल्सो, है ना. तो Yeah. 30 दिन जहाँ पे तीस तीस का महीना है, तो वहां पे 30 और 31 आपको पढ़ना है. 1 तारीख को आपको एक प्रोवर्ब्स पढ़ना है. सो बिकॉज आई ऑलवेज टेल, प्रोवर्ब्स इज सच अ बुक विच विल गिव यू ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको वहां पे. मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में मिलेगा. हर एक प्रश्न का, क्या आपको ये जॉब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको ये लड़का का सेलेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या आपको काम कैसे करना चाहिए, किसके साथ कैसा बैठना चाहिए, क्या खाना कैसे खाना चाहिए, माँ बाप को कैसे आदर करना चाहिए, हर एक प्रश्न का चीज आंसर आपको प्रोवर्ब्स में मिल सकता है. ओके, टू जी. कट टू आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, if somebody I come to know, that he or she is into sin, okay, or is into wrong kind of relationship, I don't give them the pulpit, first of all. okay, मैं उनको पुलपिट नहीं देता हूं. अगर मान लो कि मेरे पास कोई गेस्ट प्रीचर भी आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उनको नहीं बोलते कि आप आ जाओ. पहले हम उनका लाइफ को टेस्ट, मतलब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एनी एक्स वाई जेड, है ना, वांट टू कम टू अवर चर्च. सो वी टेल देम, ओके, गिव अस सम टाइम, ओके. जब मैं मान लो आप पास्टर इवांस हो गए, अब पास्टर इवांस मुझसे कहते हैं कि हम आपका चर्च आना चाहते हैं, तो मैं पास्टर इवांस से पहले ये कहूंगा, लुक, आई विल प्रे एंड आई विल गेट बैक टू यू, है ना. एंड मैं प्रार्थना करूंगा, और मुझे प्रार्थना के द्वारा अगर मुझे पीस मिलता है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है पास्टर इवांस जी, आप आइए. अगर मान लो कि मेरा नॉन व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण के तौर पे, Shelly Reddy, she's my cousin sister. Okay. So she tells me, Anna, I want to come to church. I will never say no to her, because I know her, what she believes, what kind of a doctrine she carries, what kind of a worship song she listens to, what kind of a writer she is. So I will have no problem for her to come and lead worship in our church. But XYZ, whom I know they are not following the way they should follow the Christ. So I will not allow such person in our church, and I will not give the pulpit to them. Simple and sweet, I will not allow such kind of people in our church. And I will tell the people who are watching me, if you are pastor, don't hesitate to speak, don't hesitate to take this subjects in your church. Because मैं हाल ही में पिछले 2 हफ्ते पहले ही हमने यूथ सेमिनार किया था हमारे यूथ चर्च के यूथ्स के लिए, और मैं उनको सिखाया, उनको बताया कि ये सही नहीं है, ये सही है. और हमारे टीचर्स जो वहां पर सिखाने के लिए आते हैं, हम उनको सिखाते हैं, है ना. ऐसे नहीं है कि हम वी स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन दोस थिंग्स, है ना. ऐसे नहीं कि पैसे जार पे आ रहे तो हमको करना था, नहीं किया, नहीं नहीं. वी वांट टू सी द चेंज. ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर अ यूथ आइकन, व्हाट यू डू, योर फॉलोअर्स विल डू, है ना. जो आप कर रहे हैं, आपको जो फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो वो आपको ही फॉलो करेंगे. सो लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, जितने लोग व्यूअर्स लोग ये देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है. हमको देखकर हमको फॉलो ना करें, प्लीज. इस बात को मैं वापस बोलना चाहता हूं, हमको फॉलो ना करें. अगर आपको किसी को फॉलो करना है, तो वो आपको परमेश्वर को फॉलो करना है. Follow the word of God. You need to follow God, not any man, not Emmanuel Golar, not anybody else, but follow God, and He will teach you the right way. ब्यूटीफुली सेड पास्टर, बहुत अच्छा से आपने उस चीज़ को समझाया. अ, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि अभी आपको इट्स अबाउट 2 डेकेड्स आप सेवकाई में हो. कैन यू शेयर अ टेस्टिमनी, लाइक यू रिमेंबर, मे बी हुआ होगा बहुत सालों पहले, बट यू रिमेंबर एज़ इफ इट इज़ हैपेंड यस्टरडे, समथिंग दैट गॉड हैज़ वर्क्ड सो प्रोफाउंडली इन समबडीज़ लाइफ थ्रू यू और योर मिनिस्ट्री और बाय योर सॉन्ग, कि लाइक लाइफ चेंजिंग, लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस उन्होंने लिए हों? डेफिनेटली, बहुत सारे हैं, उनमें से एक दो मैं शेयर करूंगा. मैं एक बार अमकुट नाम के, अमकुट मध्य प्रदेश में आता है. लाइक इट्स आई गॉट डाउन इन अहमदाबाद एयरपोर्ट, एंड फ्रॉम देयर वी वेंट समवेयर, not 4 5 hours 6 hours जर्नी इनसाइड, सो अमकुट में जब मैं गया हुआ था, तो वहां पर जवानों के सम्मेलन में बहुत जवान वहां पर आए थे. कम से कम 500 600 जवान लोग वहां पर थे, एक गांव में थे आए. तो जब मैं अपनी गवाही को शेयर कर रहा था, या अपने
गवाही के द्वारा, गीतों के द्वारा हो सकता है ना? जब मैं शेयर कर रहा था तो बहुत सारे जवान बच्चे मेरे पास आए, रोते हुए आए, है ना? मैं आज भी मुझे, जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात कहा कि जैसे आपके साथ कल हुआ था, है ना? तो मेरे को वो व्यक्ति का, वो बच्चे का, वो लड़के का फोटो, मतलब उसका चेहरा अभी भी इतना फ्रेश मेरे माइंड में बैठा हुआ है। उसने एक बात मुझे कहा कि पास्टर जी, मैं तो यहाँ पर नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने जबरदस्ती लाया। और आपने, जैसे आपकी गवाही में आपने बोला कि मतलब मुझे बात करने को भी नहीं आता है, मैं बहुत ही, क्या बोलते हैं ना, गलत रास्ते पे चल रहा था, मैं झूठ बोला करता था, मैं चोरी करता था, मैं गालियां देता था, क्योंकि मैं झोपड़े में पैदा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं, मेरे हर सेकंड वर्ड जो होते थे वो गाली होती थी, है ना? मैं पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने गाली लास्ट बार कब दिया है। मैं गाली कहने के मतलब है, मतलब हम जो एक्स वाई जेड गाली देते हैं, है ना? सो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? बच्चों को चिल्लाने की गाली, उसको गाली नहीं कहते। बच्चों को हम चिल्ला रहे हैं, मतलब मेरी बेटी कुछ कर रही है तो मैं उसको चिल्ला रहा हूँ, वो गाली नहीं होता है, वो चिल्लाना होता है ना? उस गाली की बात। जी, सो जब वो आया मेरे पास तो रोते हुए आया, और उसने मेरे को एक बात बोला और मुझे अच्छा लगा। मुझे कहा कि पास्टर जी, मैं ना गुटखा खाता हूँ, मैं ये गुटखा, है ना, मानिक चंद हो या जो भी, पता नहीं क्या है वो, मैं वो खाता हूँ पास्टर जी, लेकिन आज के बाद मैं वो नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपने कहा कि ये हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। मैं परमेश्वर को जानता भी नहीं हूँ, है ना, लेकिन आपके द्वारा मैं परमेश्वर को जान लिया। आपके द्वारा मैंने, क्या बोलते हैं ना, परमेश्वर को पहचाना। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस बात को सिखाया। ओके, इस गवाही जी, के बारे में मैं, है ना, मुझे अच्छी सी याद है गीतों के द्वारा। यूट्यूब के, आप यूट्यूब पेज पर आप जाओगे, कितने ही एन नंबर्स ऑफ टेस्टिमनीज आप देख सकते हो। क्या है, खुदा नाम का एक गीत है, वो गीत के द्वारा कितने लोगों ने परमेश्वर को क्या रास्ते पर चल रहे हैं। वो गीत मैंने नहीं लिखा है, वो गीत को भाई अंतेश ने लिखा है और मैंने केवल गाया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, देखिए, लिखना भी परमेश्वर के ओर से एक टैलेंट है ना? जी, तो परमेश्वर से आप मांगे, है ना? मैं कंपोजर हूँ, आई एम अ कंपोजर, आई कंपोज सॉन्ग्स, है ना? व्हेन पीपल गिव मी लिरिक्स, आई कंपोज इट, है ना? काफी सारे गीत को आप देखे होंगे, मेरे सारे गीत मेरे दोस्त जब मेरे को लिख के देते हैं, तो काफी सारे गीतों को हम कंपोज किए, गाए हैं, है ना, अलग अलग भाषाओं में गाए हैं। लेकिन और एक गवाही, अगर आप, मैं आपको हीलिंग के बारे में, चंगाई गीत के द्वारा, जैसा या वचन के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा जो हुई। हाल ही में मैं कनाडा में था, और कनाडा में एक बच्चे को मेरे पास लाया गया। उस बच्चे का नाम है एरन, जो कैलगरी नाम का एक जगह है कनाडा में। और उस बच्चे को मेरे पास लाया गया, और वो बच्चा बात नहीं कर सकता था, मतलब बात भी करता था, मतलब, है ना, ऑटिज्म काइंड ऑफ बच्चा था, मतलब हम्म, वो इधर उधर मूव कर रहा है ना, बात नहीं कर पा रहा है, खाली ऐसा कर रहा था। तो उस बच्चे का पिताजी, मतलब करुणाकर, उस पिताजी का नाम, मतलब भाई का नाम है, उसका बेटा का नाम एरन है। सो वो मेरे पास आए और मेरे को कहे कि पास्टर जी प्लीज मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर का अभिषेक आप पर है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। और मैंने कहा कि आपको किस लिए प्रार्थना करवाना है? तो बोला कि मेरा बेटा जो है ना, बहुत ही आराधना के गीतों को सुनता है, आपके गीत को भी सुनता है ना, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि, है ना, वो बात कर सके और वो गा सके। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके मैं इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद पिछले कुछ दिनों के पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक गवाही उन्होंने लिखा और कहा कि पास्टर इमैनुअल, हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपकी जिंदगी के लिए। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि याद है आपने एरन के लिए प्रार्थना किया था? मैंने बोला हाँ। याद है आपने ये बात बोला था कि ये साल खत्म होने से पहले ही वो बच्चा बात करेगा और वो बच्चा गाएगा भी? तो मैंने बोला हाँ। तो फिर मन में उसने एक वीडियो बनाकर मुझे भेजा, और स्टूडियो में वो बच्चा इतना खूबसूरत रीति से गाना गा रहा है। तो आई वॉज शॉक। मैं आई वॉज लाइक व्हाट, है ना? मैं कहना चाहता हूँ कि ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये केवल जी, परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति को, है ना, परमेश्वर के राज्य के लिए, किंगडम के लिए इस्तेमाल किया है। सो देयर आर लॉट ऑफ testimonies which I can share within India, around the world, but I don't want to take much time on those things, but yes, God is good, and He can do अमेजिंग स्टफ थ्रू योर लाइफ, थ्रू, मतलब आपके चलने के द्वारा, आपके बात करने के द्वारा, आपका उठने के द्वारा,
है ना? मैंने बहुत सारे समय मैं टैक्सी में सफ़र करता हूँ, तो है ना? तो काफ़ी सारे समय हम कैब में जब सफ़र करते हैं, तो मैं कैब ड्राइवर से बात करता हूँ। फ्लाइट में जब सफ़र करते हैं, तो फ्लाइट में बाजू वाले के साथ बैठ के कितने ही लोगों का जीवन को मैंने बदलते हुए है ना देखा है ना? सो these are few Yeah, testimonies which I can share, yeah. yeah. It's awesome, Pastor. I remember a pastor who is connected with me in Australia, and he is actually a cab driver. And he says he every day I drive a cab for 8 hours. Every passenger I meet, I witness, and so he is doing their ministry in that way. Thank you so much, Pastor. आपने इतने अच्छे से हमें समझाया. So because you're pastoring a church and you are into ministry, traveling बहुत सारा होता है. तो my question is, how do you spiritually nourish yourself and prevent burnout in ministry? Like बहुत सारे लोग हैं जो थक जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, मतलब कि हाउ यू मैनेज टू स्पिरिचुअली नरिश योरसेल्फ कि आप थके भी ना और एक बैलेंस बना के चलें? Uh, देखो, there are a lot of times as a pastor, people try to invite you so many places. It is always good to take invitation uh, आफ्टर टॉकिंग टू गॉड, है ना? परमेश्वर से बात करने के बाद में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मतलब इस पॉडकास्ट में बात करने से पहले भी मैंने काफी समय को लिया, एंड प्रेयरफुली भी इस पॉडकास्ट में हम आए. सो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा अपने आप को बर्न आउट ना करें, है ना? सेवकाई में मैं कल एक पास्टर का वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो में पास्टर ने खूबसूरत रीति से कहा कि सबसे पहले हमें परमेश्वर को स्थान देना है, सेकंड हमको अपने परिवार को स्थान देना है ना? बहुत से लोग, बहुत से पास्टर्स का आज डिवोर्स होने का कारण वही है कि वो लोग परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं, लेकिन सेकंड स्थान वो लोग मिनिस्ट्री को दे रहे हैं. मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, इधर उधर 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 भाग रहे हैं. लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, भले आप सेवकाई में हैं या नए हैं, है ना, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि, है ना, अपने आप को स्पिरिचुअली नर्चर करना, स्पिरिचुअली, है ना, आपको जैसे आप बॉडी को, शरीर को अच्छा रखने के लिए हम डाइट करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, उसी तरह हमें भी हमारे आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिक शरीर के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, वचन की जरूरत है ना? जहाँ पर हम बहुत से बार सफर करते हैं. इनफैक्ट मैं आज भी सफर कर रहा हूँ. आज रात को मैं मॉरिशस जा रहा हूँ, है ना? सो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब यू नीड टू टेक आउट टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, and you need to give your time to God. And no, it might be, you are driving, and while driving also, most of the time, I get my composition. I still remember, आप एक गाना देखा होगा YouTube पर जो कहता है, उसके जैसा ना कोई खुदा है, उसके जैसा ना कोई कहा, उसकी कुदरत है सबसे निराली, बादशाहों का वो बादशाह, सजदे में झुकते हैं सभी सर, गाते हैं सब यहाँ, बोलो यीशु मसीह की जय. ये गीत जो है, मैं बाइक चला रहा था, आज मुझे याद भी है, अंधेरी के सिग्नल पे मैं खड़ा हुआ था, और मुझे एक कंपोजिशन याद है, ना 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 ने ना ना ने ना 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 रे ना रा ना ना रा ना ना. सो मतलब, as I said, I am not a writer, I am a composer. So मैंने तुरंत मेरे दोस्त को फोन लगाया और मैंने रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल पे, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे फोन पे है ना? 2021 की मैं बात कर रहा हूँ. और फिर उसके बाद में मैंने उस पे गीत करवाया. सो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप भले बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, या आप, है ना, आपके घर पे लेटे हुए हो, आप, जैसे एक एक वचन मुझे याद आता है कि ना, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 में ऐसा लिखता है, जब तू अपने बच्चे के साथ रोड पर चल रहा है, तो उसके साथ, है ना, वचन से बात कर. जब उसके साथ Mhm. बैठा है घर पर, उसके साथ वचन से बात कर. जब उठेगा, उसके साथ वचन से बात कर. जब सोएगा, जब लेटेगा, तो भी वचन से बात कर. इसका मतलब, आप लेटते समय, खड़े रहते समय, चलते समय, सफर करते समय, हर समय में आप प्रार्थना कर सकते हैं. कोई आपको रोक नहीं है ना? जैसे आप कहीं पर भी आप फोन पे बात कर लेते हो सबसे, वैसे ही आप कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक स्पॉट ही रखना है. हाँ, दैट इज कॉल्ड एज क्वाइट टाइम. वो अलग बात है कि आपका क्वाइट टाइम आप कहाँ पे करते हो, है ना? दैट्स अ डिफरेंट प्ले द थिंग.
बट आप कहीं पर भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, कहीं पर भी है ना आप परमेश्वर के साथ बात कर सकते हो. सो यू नीड टू कीप नर्चरिंग योरसेल्फ, कीप praying, keep yourself filled with the anointing comes from God. है ना अपने आप में एक बबल होना चाहिए कि चलो मतलब है ना जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो है ना आई स्पीक इन टंग्स, आई टॉक टू गॉड एंड आई डिफरेंट थिंग्स so that's how I nurture myself. And if you say yeah, जी, so it's very important to spend time in the word of God as well as in spending time in prayer. जी, जी। अ, आज आप एक पास्टर के साथ, वर्शिपर के साथ एक पति भी हैं और एक पिता भी हैं। How you balance everything, like, how you take time for church, how you plan, like, maybe viewers can also learn ki how you plan your week. Like for me, Yeah. my whole couple of weeks ahead of me is planned. I know कि मेरे को किस दिन क्या करना है. So how you do that? Well, it's so important to spend time with your family, because अगर हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो शैतान अपने फैमिली के साथ खेलेगा. सो मतलब Yes. for example, as a husband, if I don't give my time to my wife mind will work in other way. you know ये नहीं बोल रहा कि मेरी वाइफ गलत रास्ते पे चले जाएगी, लेकिन शैतान उसके माइंड से खेलेगा, बोलेगा देख तेरा पति तुझे जी, समय नहीं दे रहा है ना. सो इट्स ऑलवेज गुड टू बैलेंस योर लाइफ. सेवकाई भी करना है, साथ ही साथ परमेश्वर का मतलब साथ ही साथ अपने परिवार के साथ समय बिताना है. बाइबल में एक वचन कहता है, अगर तू अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकता है तो मेरा देह को तो तू कैसा संभालेगा, मेरी जी, कलीसिया को तू कैसे संभालेगा. तो बाइबल ये कहता है कि तू पहले अपने परिवार को संभाल. इस वजह से लॉट ऑफ यंगस्टर्स देयर आर वी कैन सी डिवोर्स, यंग वर्शिप लीडर्स हो गए या पास्टर्स हो गए, है ना. बहुत सारे लोगों के लाइफ में हम देखते हैं मतलब है ना थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट बिकॉज दे आर गोइंग रनिंग बिहाइंड गॉड 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 गॉड. यस, है ना कि हम परमेश्वर के पीछे भागना जरूरी है ना, लेकिन साथ ही साथ हमको अपने परिवार के साथ समय बिताना है. मैं हर वक्त है ना, जैसे आपने कहा कि मैं अपना प्लान करता हूँ, है ना. आई मेक श्योर that I travel with my wife, with my children, I spend time with my children. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दिन भर में थक के आया होता हूँ, रात को उनके साथ बैठ के बात करता हूँ, है ना. उनको पूछता हूँ कि हाउ वाज द डे, आपका आज का दिन में क्या किया आपने, कैसे रहा, स्कूल में क्या हुआ, सारी बातों को हम सुनते हैं क्योंकि वी लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो. My wife teaches me so many things because she's an amazing preacher, word of woman of God. She shared the word of God, woman of prayer. So I learned so many things from when I talk to her, when we sit together. आज भी शादी के 5 साल हो गए, लेकिन आज भी हम जब अकेले में बैठते हैं, we like to spend time alone, sometimes we like to spend time alone without our children. Most of the time हमारे बच्चों को हम है ना इन लॉज के हाथ में दे देते हैं, मेरे मम्मी पापा के हाथ में या उनके मम्मी पापा, ताकि हम टाइम स्पेंड करें, है ना. सो very important to spend time with your spouse, with your husband, with your children, you need to make out, you need to कहते हैं ना आपको समय बनाना है. समय बनेगा नहीं, exactly. आपको बनाना है. ओके. सब लोग सुनते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे बहुत बिजी हूँ, अरे बहुत बिजी हूँ, अरे बहुत बिजी हूँ. अगर ऐसे होता तो शायद आज मैं पॉडकास्ट में नहीं आया होता, है ना. क्योंकि Exactly. मैंने समय बनाया. भले आज मैं रात को सफर कर रहा हूँ, है ना, भले मुझे बहुत कुछ काम करना है ना. आई नीड टू पैक माय बैग्स, आई नीड टू डू माय ट्रैवल इंश्योरेंस, सो मेनी थिंग्स आर बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग एज अ फैमिली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मी माय वाइफ बोथ माय चिल्ड्रन आर ट्रैवलिंग टुडे, है ना. सो आई कुड हैव इजीली से नो, आई वांट डोंट वांट टू, बट मैंने समय बनाया. सो यू नीड टू मेक टाइम फॉर योर फैमिली इन दैट सेम वे. जैसे मैंने ये पॉडकास्ट के लिए समय बनाया, वैसे ही आप सब लोगों को आपको आपकी जिंदगी में समय बनाना है, वचन पढ़ने के लिए, है ना, प्रार्थना करने के लिए, हो गया मतलब अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ बात करने के लिए. बहुत से लोग देखते हैं परिवार के साथ. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड अ गुड टाइम विद योर वाइफ? आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज दे कम विद अ वेरी कहते हैं ना 4x4 के कमरे में रहते हैं, तो दे डोंट हैव स्पेस. So I will tell to them such kind of people, because I'm talking about Dharavi now. I will tell that kind of people, take your wife out, है ना, बाहर जाइए, है ना, कोई अच्छे से क्या बोलते हैं ना रेस्टोरेंट में जाइए, बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए. आई डू दैट. मैं अपनी वाइफ को लेकर रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, बैठता हूँ अकेले, घंटों बैठ के हम बात करते हैं.
है ना, खाते हैं, बीचेस पे जाता हूँ, बैठता हूँ, है ना, बात करते हैं, है ना, खूबसूरत क्या बोलते हैं ना, लहरों को हम देखते हैं। अच्छा, it's nothing wrong to spend time with your wife and spend time with your husband. It's very, very, very important to remove your time out of your busy schedule and spend time with your family. I do that. I ask you also to do it. I remember there was a time that one person blocked me, and I don't want to take names or in the denomination go through, but you know what she said? She said to me that you, I can see that you love your wife, so I can't be with you. Like, I want people who only love Jesus. So I Ah, only told her one thing: my relationship with my wife shows my relationship with God. So, you know, if I love God, I will give time to his daughter. I always tell everybody, before she is somebody human's daughter, she is God's daughter. So, and you know, that's what the Bible says, ki, if you love your wife, take care of your wife, you know, your prayers will not be hindered. The reason many of the men's prayers are been hindered because God, परमेश्वर की बेटी का ही ख्याल नहीं रखते, and they are asking God a favor. So it's very amazing. Like, you know, we have Sister Persis also here on our podcast, and she shared that, you know, हर साल एक बार that family goes for an outing. बहुत सारे लोगों को लगता है कि like, you know, going out with family is waste of money, but that is an investment जो हम सबको करना है, and church need to, you know, teach this. It is very important. Without family, no ministry. Without family, no testimony. true. uh yeah, pastor. And because we are sharing, questions are there, but I just need to feel, and question is that, you know, how is your prayer life, how your prayer life impact you as an individual, you know, because See, a man who prayers, you can see a difference in his, the way he talks, the way he does things. तो आपके लाइफ में प्रेयर लाइफ क्या है, कैसा है, फास्टिंग प्रेयर, बहुत ही how you do that? see, without prayer, you can't go anywhere. Um, See, I've seen that thing in my father's life. My father every day morning, you know, he used to wake us up at मैं जब हम छोटे थे तो क्योंकि हम चर्च में सोया करते थे, क्योंकि हमारे चर्च हमारे घर पे जगह नहीं होती थी, क्योंकि हम, जैसे हमने कहा कि हम 6 लोग हैं, है ना, हम 4 बच्चे और मम्मी पापा, तो हमारी घर बहुत छोटी होती थी, तो इसके लिए हम धारावी में ही हमारी कलीसिया है, धारावी में घर के एकदम नजदीक में हमारी चर्च है, तो हम चर्च में सोते थे। तो हमारे चर्च में काफी ऐसे बच्चे सोते थे हमारे साथ में, जो जिनके जिनके घर में जगह नहीं होती थी, तो चर्च में आके सोते थे। लेकिन हम जब जितने भी बच्चे चर्च में सोते थे, सारे बच्चों को 5 बजे उठाया किया जाता था, है ना। हम लोग का मुझे अच्छे से याद है, 5-10 लोग हम सोते थे। काफ़ी मेरे बचपन के दोस्त लोग हैं अभी भी, है ना? सो सारे लोग, है ना, पिताजी जो है क्या, सारे लोगों को 5 बजे उठाया करते थे। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू नो, प्रार्थना मैंने मेरे पिताजी के जीवन में उनके द्वारा हमने सीखा है कि प्रार्थना के बिना हम अधूरे हैं, है ना? प्रार्थना हमको बाइबल सिखाती है, हमको निरंतर प्रार्थना करना है। सो prayer is very important, and you can see, you know, uh, my life, and the way God is using me, it is all because of the prayer of my parents, of my prayer, and as well as my family prayer. My wife prays for me so many times, like almost every day, you know. Because I am a traveler, as you all know, I keep traveling, you know. This like आज 5 तारीख है, आज सितंबर 5 तारीख है, अक्टूबर 9 तारीख तक मैं इंडिया से बाहर रहूंगा, you know. So I'm like I'm going from today to Mauritius with my family, and from there to Australia, and from there to Fiji. And Fiji का 5 कॉन्सर्ट करके मैं 7 अक्टूबर को हैदराबाद आने वाला हूँ। मतलब like I have so many things going on, you know. But in all those things, you can see it is not Emmanuel has opened the door. It is God who has opened the door, as He has promised us this year, 2024. And God promised me clearly when I was praying. I still remember December 28th. I was praying and I was asking God, God, what you want me to, speak to the church for this coming year, 2024, how 2024 will be like, and how it will look like. So I had a dream, I had a vision, and the door is opening kind like this, as we go to wherever we go in a mall or a shop, to the airport. जब हम जाते हैं एयरपोर्ट पे या मॉल में, तो एक डोर ऑटोमेटिकली ओपन होता है, तो मैंने एक डोर ऐसा खुला हुआ देखा।
तो मैंने परमेश्वर को पूछा, क्या परमेश्वर ये साल हमारे लिए खुला दरवाजे का साल है? तो मेरी वाइफ ने बोला, हाँ, ये वही है। So, see, prayer can open Amen. all the doors which are shut for your life. If you see in your life there is, the not some things are not working, that means there is no prayers. So, prayer can open anything. Prayer can open all the shut doors for your life. Amen. Amen. Uh, Pastor, what do you think about today's music ministry that is taking place in India? Like, what are your views? Like, how it was 10 years back, and what you see? What's the difference? See, I vividly remembered, मैं आपको 2007 6-7 की बात कर रहा हूँ। मैं 6-7-8 है ना, उस दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं अंकल विजय बेनेडी के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अंकल विजय बेनेडी के लिए मैं कीबोर्ड बजाता था। तो मैं एक कॉन्सर्ट था बोरीवली में, एंड हम उस कॉन्सर्ट के लिए तैयार कर रहे थे। सो वी हैव लॉट्स ऑफ बैंड मेंबर्स। लेकिन जब मैं अंकल विजय बेनेडी के घर पे अकेले बैठा हुआ था, क्योंकि बैंड मेंबर्स नहीं आए होते, तो अंकल विजय और मैं चाय पी रहे थे। चाय पीते समय मैंने अंकल विजय से एक क्वेश्चन पूछा कि अंकल, आप क्या देख रहे हो पुराने, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, पुराने वर्शिपर्स में और आज के वर्शिपर्स में आप क्या देख रहे हो? तो मैंने जब उसको प्रश्न पूछा, और मैंने उनसे ये भी प्रश्न पूछा, ऐसी आपके अंदर क्या खासियत है कि आप इस फील्ड में, या नॉट फील्ड में बोलते हैं, इस सेवकाई में, मतलब वर्शिप मिनिस्ट्री में आप 20-25 साल से हो, लेकिन आज भी लोग तरसते हैं पास्टर विजय बेनेडी को इनवाइट करने के लिए। ऐसे आपके अंदर क्या खासियत है कि आपको परमेश्वर ने आज भी वैसे ही रखा है जो आप 25 साल पहले थे? तो उन्होंने मेरे को एक बात बहुत ही खूबसूरती से कहा कि बेटा, आज के जो जनरेशन के जो युवाएं हैं, वे लोग है ना घसना नहीं चाहते अपने आप को, है ना। उसने ये शब्द कहा, दे डोंट वांट टू स्ट्रगल इन लाइफ। वो कहते हैं, आप मेरे को बुलाना चाहते हो? हाँ, मैं आऊंगा। फ्लाइट से बुक करो, मैं ट्रेन से नहीं सफर करता, है ना, मैं बस से नहीं सफर कर सकता। तो मैंने जिंदगी में, आप मुझे पूछो, मैंने साइकिल में सफर किया है, मैंने ट्रेन में सफर किया है, बाथरूम के बाजू में सोकर सफर किया है। पीपल हु नो मी, दे नो हाउ आई टू ट्रैवल, मैंने क्या कहते हैं, कार में सफर किया है, फ्लाइट में सफर किया है। हर हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने सफर, मतलब है ना, सफर जो ट्रैवल किया है ना। सो लेकिन आप देखेंगे तो इन दिनों में जब जवान बच्चों को मैं बोलता हूं कि आपको एग्जाम्पल अंधेरी आना है, तो वो क्या बोलेंगे, मैं अंदर ही नहीं आ सकता हूँ, वो बहुत दूर है। अरे, ये कैसा दूर हो गया, है ना? अरे, आप रहते हैं धारावी में, मंदिर ही कितना दूर हो गया, आप आ सकते हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने कीबोर्ड को उठाकर मैं एक जगह से लेकर एक, मतलब 2-3 किलोमीटर चल के जाता था। लेकिन आज जवान बच्चों को हम देखेंगे, जब आप बोलते हैं कि आपको आना है, they don't want to, we used to spend time in rehearsals, we used to spend times, in praying, and आज बच्चों को हम जब पूछते हैं कि आप क्या गा रहे हो, तो बोलते हैं, अरे कल की बात है ना, कल सुबह में सोचेंगे क्या गाना है। अरे, दैट मीन्स देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर अ यंग जनरेशन। सो आई टेल टू माय यंग फोक्स, जो जितने जवान बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग, भले संडे आपको गाना है, जैसे मैंने अपने चर्च में एक रूल फॉलो लगाया है कि अगर आप संडे को आपका, मान लो कि आपका नाम है, आपको वर्शिप लीड करना है, प्रेस लीड करना है, सो आपको वेडनेसडे से पहले ही गाना आपको प्रेयरफुली सेलेक्ट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। सैटरडे को आपको प्रैक्टिस में आना है। एवरीडे मॉर्निंग का जो क्वायर का प्रेयर होता है, उसमें आपको जुड़ना है। साथ ही साथ शनिवार का आपको जो प्रेयर होता है ना, जो हम रखते हैं इंटरसेशन प्रेयर, है ना, फॉर संडे सर्विस, यू हैव टू बी देयर। इफ यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट अलाउड टू टच द माइक आल्सो। But I see a lot of churches not doing that. So a lot of people not doing that. So I urge with my both hand folded, अगर जवान बच्चे आप हैं, अगर पास्टर्स आप देख रहे हैं, प्लीज अपने जवान बच्चों को ऐसे ही नहीं, सैटरडे संडे को आ गए, माइक दे दो, उसके हाथ में गाने दो, जो मांगते गाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। यू नीड टू हैव अ प्रिपरेशन, है ना। मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं परमेश्वर के लिए गा रहा हूं, जब मैं परमेश्वर के लिए आराधना कर रहा हूं,
तो मुझे मेरा बेस्ट परमेश्वर को देना है। हो सकता है वो गीत, हो सकता है वो आराधना मेरे लिए अंत मतलब लास्ट आराधना हो सकती है, तो मैं लास्ट आराधना परमेश्वर को बेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इज द बेस्ट गॉड. So I want to give him the best. And if I have to give him the best, I have to work on it. I have to, I have to prepare myself. So yes, जी मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों में जवानों के अंदर there is no preparation, which I feel sad of it. Yeah. ओके एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मेक्स यू सैड व्हेन यू लुक एट अराउंड यू among the believers? Is there anything else, like apart from Uh, preparation? among apart from preparation these days, what I am not happy with it, uh, there's so much of gossip going on in the kingdom of God. So much of gossip. If you see in the world, people don't care. They keep going. But in kingdom of God, the moment Evans is growing, 10 people will talk bad about him and try to pull him down. The moment Emmanuel is traveling to, so that is one of the reason, if you will not see me posting things nowadays on Facebook or on media. I preached in more than 28 churches in Canada. Nobody knows that. Why should I tell the world? God knows it. That's it. खत्म हो गया मेरी कहानी. परमेश्वर जानता है कि मैं क्या किया कनाडा में. कितने लोग परमेश्वर को मतलब अपने हृदय को वापस, है ना, एक कनाडा में एक गवाही मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. एक चर्च में जब मैं गया था एडमिंटन नाम की जगह पे कनाडा में, और मैं हाल ही की बात कर रहा हूँ, है ना. ऐसे तो बहुत सारी गवाही हैं, मैं हाल ही का बात करना चाहता हूँ. वो ये था कि उस पास्टर ने मुझसे कहा कि पास्टर जी, हमारे कलीसिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत सारे पास्टर्स आए, लेकिन जो आपने किया वो किसी ने नहीं किया. मैंने पूछा ऐसे क्या किया है मैंने? तो उसने किया कि आपने हमारे सारे जवान बच्चों को घुटने पर रखकर प्रार्थना करने के लिए कहा. तो मैंने बोला हाँ, तो वो तो सब कहते हैं. बोलते नहीं, यहाँ पर लाइफ इज सो डिफरेंट. जहाँ पे प्रचारक आते हैं, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता, वो लोग प्रचार करते रहते हैं. मैंने बोला नो, अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे पूछेगा तू वहां पर गया था, तो वहां पर लोग तो अपने क्या बोलते फोन पे बिजी थे, तूने उनको क्यों नहीं सुनाया, तूने क्यों नहीं चिल्लाया उनको. तो फिर तो यू नीड टू बी आंसरेबल टू गॉड. सो सो मेरा जो आपके प्रश्न आपने जो पूछा था मुझसे, व्हाट मेक यू सैड, the thing I makes me sad is like the gossip which is going around. It's not I'm not happy with it. That's why these days I don't like to mingle around with people who gossip, and I like to keep it to myself and with God. Let God judge, and we are no one to judge anybody, and this we should stop. And recently we had a pastors fellowship in Dharavi and Matunga pastors. I shared the same thing, with all the pastors there. I told them, if somebody comes to you and gossip about another pastor to you, remember they will gossip about you to that another pastor also. So Yeah, better is when somebody comes and put all the garbage in you about others, stop them. Tell them, no, I don't want to take garbage of theirs into my life. If you have anything against them, go talk to them and सुलह कर लो, उनके साथ बात करके सुलह कर लो. So ये चीज हमारे में हमको नहीं करना है. So this is what we should stop doing it, so that the body of Christ grow more and more. अंत के दिनों में हमको बहुत काम करना है. परमेश्वर के बारे में बात करो, परमेश्वर के लोगों के बारे में मत बात करो. exactly. Pastor, how do you handle, trolls, people who speak ill about you? Like, कितना भी अच्छा कर लो लाइफ में, somebody will be there who will be feeling hurt. Like if you don't pick up their call, if you don't reply them immediately. I've seen one thing is, कोई prayer request भेजता है, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं देखा तो वो डिलीट मार देते हैं. Like as if like, we are sitting just for only their message. So and the जो even वो delete करने का behavior, it impacts us. Like, only we know the struggles that we go through. So how you handle these type of people? इस प्रश्न का उत्तर को मैं अच्छी तरीके से दे सकता हूँ, बिकॉज मेरे जिंदगी में बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ
काम कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वाई? एक बार मैं अपने मेंटर के साथ में बैठा हुआ था, और मेरे मेंटर का नाम है पास्टर जॉन सी रेड्डी। He is the only one. I don't change my spiritual father day in, day out, which I do, Yeah. which I see people doing it. You know, Mm. I have one mentor, I have one spiritual father, I have one physical father. You know, these days, lot of Papa Bucks have grown up. Uh, uh, I don't want to go there, but मैं उनके साथ जब बैठा हुआ था, और जब मैं बात कर रहा था, और मैं एक व्यक्ति के लिए मैं मेरे अंदर बहुत कड़वाहट थी, और मैंने कहा कि पास्टर जी, आई डोंट नो व्हाई दिस मैन डिड सो मच सो बैड टू मी, you know, and you know what he told me? He told me one thing. He told me, son, जिस व्यक्ति ने आपको ठेस पहुंचाया, वो व्यक्ति उस दिन रात को परमेश्वर के सामने जाके अगर माफी मांगा होगा, परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया होगा। परमेश्वर ने जब उसको माफ किया है, तो तू क्यों नहीं उसको माफ कर सकता है? मैंने बोला, हाँ यार, ये तो सही बात है ना। मतलब परमेश्वर ने वो व्यक्ति ने भले मेरे सामने माफी नहीं मांगा होगा, लेकिन वो परमेश्वर के सामने बैठ के वो बोला होगा कि परमेश्वर, मैंने आज इमानुएल के साथ में, है ना, उसको गाली दे दिया, है ना, या उसके साथ में नफरत से, गुस्से से बात कर दिया, है ना, तो मुझे माफ करो। परमेश्वर ने उसको बोला, ठीक है बेटा, अभी मैंने तुझे माफ कर दिया। लेकिन मैं मेरे दिल में रखा उसके प्रति। तो उस दिन मैंने उस बात को सीखा। मैं ये आपको 2003-4 की बात कर रहा हूँ, है ना। उस दिन से लेके आज तक मैं आपको बता सकता हूँ 100% रीति से, अगर आप मेरे को अगर अभी आप ऐसे कट भी करके, अगर आ, आप कर तो नहीं सकते, आप देख तो नहीं सकते अंदर मेरा क्या है, लेकिन मैं क्लियरली परमेश्वर के हुजूरी में बैठा हूँ, उसकी उपस्थिति में बैठा हूँ, मैं कह सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी, क्या कहते हैं ना, दुश्मनी, या मैं आई डोंट हैव एनी hate against Mm. anybody. I don't have any, कहते हैं ना, भेदभाव अबाउट, Grudge. मैं किसी के प्रति मेरे अंदर ग्रज नहीं है। आप मेरे प्रति, मेरी पत्नी को पूछ सकते हैं, या किसी से, मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं कि मैं कैसा हूँ। एंड आई एम वेरी कहते हैं ना, जॉवियल काइंड ऑफ गाय, लाइक टू टॉक टू यू, यू नो। अगर आपने मुझे गाली दिया भी होगा आज सुबह, तो मैं आज शाम को आपको फोन करके वापस बात करूंगा, अरे कैसा है तू। सो इट्स लाइक दैट। सो पीपल ट्रोल यू, बट दैट शुड नॉट हर्ट यू। क्या यीशु मसीह को, मैं एक ही बात सोचता हूँ, क्या यीशु मसीह को लोग ने गाली नहीं दी? क्या यीशु मसीह को लोग ने नाना प्रकार के बातों को नहीं बोला? लेकिन उसने उस बातों को सुना, लेकिन उसको रिटेलिएट नहीं किया। मेरी वाइफ, मुझे आज एक बात याद आ रहा है, मैं बोलना चाहूंगा। दिसंबर 9, 2019, दिसंबर 9 को एक व्यक्ति ने फेसबुक पर जाकर मेरे खिलाफ बहुत बात किया, बहुत गलत बात, बहुत गंदी बात को उसने किया। दिसंबर 9, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं उस दिन गुजरात सफर कर रहा था, मेरे साथ काफी लोग थे, है ना। मैं गुजरात में एक शादी के लिए गया हुआ था, वापी नाम की जगह पर। तो मेरी पत्नी ने मुझे 10 दिसंबर को सुबह में, क्योंकि मैं जब सफर कर रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है ना, मीडिया पर, क्योंकि मैं सफर कर रहा था और इंटरनेट नहीं थी ट्रेन में। सो 10 दिसंबर को सुबह सुबह जब मैं गुजरात पहुंचा, तो मुझे मेरी बीवी ने एक फ़ोन करके एक बात को कहा कि, उन्होंने कहा कि यू आर ग्रोइंग, है ना, आप बढ़ रहे हो। तो मैंने बोला, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो शी सेड, यू नो, समबडी ऑन फेसबुक टॉकिंग बैड अबाउट यू, बट रिमेंबर, डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन ऑन मीडिया। एंड आई वाज लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लेट गॉड फाइट फॉर यू। एंड आई वाज लाइक, मुझे निर्गमन याद आया, है ना। एक्सोडस बाइबल सेज टू मोसेस, है ना, यू Yeah. डोंट फाइट, I'll fight for you, है ना। सो मैंने बोला, यू बी स्टिल एंड लुक एंड वॉच व्हाट आई कैन डू फॉर यू। मैंने सच बोल रहा हूँ, मैं शांत रहा, मैं कुछ नहीं किया। आखिर में उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की जिंदगी में इतनी तकलीफ हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी तकलीफ के लिए मैंने प्रार्थना किया, नहीं नहीं नहीं, है ना। परमेश्वर जानता है आप कैसे हो। लोग, है ना, क्या कर रहे हैं आपके प्रति, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको केवल परमेश्वर के ऊपर आपका दृष्टि को रखकर आपको आगे बढ़ना है। दिस इज हाउ आई डील विथ माई लाइफ। इफ somebody is trolling me, if somebody is talking bad about me, I listen from here, I leave it from here, I forgive and forget। मेरे को, मेरे अंदर नहीं जाता वो, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर नहीं जाता है। Okay. Uh,
The last question, Pastor, I would like to ask is what advice you will give to upcoming youngsters, upcoming leaders, वो नौजवान जो चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करें. तो what advice you will give? Some bullet points, like, out of your life, you can extract and say, okay, this is what I follow. It has worked for me. I believe it can work for you also. Sure. Definitely, I will give you a few points like this. First of all, you need to understand the calling of God on your life. है ना? बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत 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 से लोगों को. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ, लेट मी गो बैक, एंड मेरे पिताजी ने मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए सौंप दिया था, लेकिन मैं जिंदगी में कभी भी पास्टर नहीं बनना चाहता था. लेट मी बी वेरी openly share this to all the viewers. मैं नहीं चाहता था कि मैं पास्टर बनूं. मैं बहुत ही अच्छे से कीबोर्ड बजा रहा था, बिकॉज पीपल नो ऑल ओवर इंडिया दैट आई एम अ कीबोर्ड प्लेयर. पीपल यूज्ड टू नो इज द कीबोर्डिस्ट. अरे उसको बुला, इमैनुअल को बुला, वो अच्छा कीबोर्ड बजाता है ना, क्योंकि मैं, एज आई सेड, है ना, मैं लोगों के लिए कीबोर्ड बजाया करता था. सो लेकिन जब मैं बाइबल कॉलेज चले गया, और बाइबल कॉलेज में भी मुझे जब पूछा गया कि आप करना क्या चाहते हो, तो मैंने उनको बोला कि आई वांट टू बी एन इवेंजलिस्ट, travel evangelist, because I love to travel. I love to go to different places and share the word of God and share my testimony, what God has done in my life. So, but there's a time which came in 2012, after my graduation, 2012, 20th of March, many pastors came and ordained me as a pastor. I knew that God wants me to be to be a mentor or to be a shepherd to a church. But again, I'm a travel pastor. I have a church in Dharavi. My dad is a senior pastor there. My wife is a pastor there. But to people who are watching me, don't jump into ministry just because you can preach well, just because you can talk well, just because you can sing well. Okay? सिंगिंग मिनिस्ट्री अलग होता है, प्रीचिंग मिनिस्ट्री अलग होता है. बहुत से लोगों को मैं ये देख रहा हूँ, वो लोग, they were the worshippers, but now they are pastors. But I have seen, I'm not talking about everybody, but few here and there, I know few people, who are like, there's no calling on their life, but they want to call themselves as pastor. है ना. एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ. एक व्यक्ति धारावी में मुझे लॉकडाउन के समय में मेरे पास आया और बोला कि पास्टर जी, मुझे प्लीज हेल्प करिए, मुझे प्लीज हेल्प करिए, मुझे प्लीज हेल्प करिए. तो मैंने उसको पूछा कि क्या बात है ना, व्हाई डू यू नीड माय हेल्प, गॉड इज देयर टू हेल्प यू. तो इसने बोला, तो मैंने बोला कि व्हाट इज इट. तो जब मैंने उसको पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है ना, आप कहाँ से आते हो, है ना, आपके मेंटर कौन है, तो उसने, जब मैंने पूछा उसका मेंटर कौन है, तो उसने बोला नहीं, कोई मेंटर नहीं है, परमेश्वर ही मेरा मेंटर है. मैंने बोला देन यू आर नॉट ऑन अ राइट बोट. सो यू नीड टू हैव अ calling from God. If God has called you, if let me tell you like this, if God has given you a vision about the ministry, he will give you a provision for your ministry also. He will provide for you. You don't need to go and beg in front of people. He will make a way for you. God will make a way for you. There's a beautiful song. God will make a way where there seems to be no way. परमेश्वर रास्ता बनाएगा जहां पर आपको रास्ता नहीं दिख रहा, वहां पर परमेश्वर रास्ता बनाएगा. कब? जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है. जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जैसे परमेश्वर ने, क्या कहते ना, अनेक अनेक प्रकार के लोगों को आप बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने उनको बुलावट दी और परमेश्वर ने उनके पेट को भरा, है ना. सो गॉड विल फीड यू इफ यू आस्क गॉड टू हेल्प यू. वेयर शुड आई वॉक, है ना, क्या मैं करूं. अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, परमेश्वर ने आपसे बात किया है, परमेश्वर का कॉल आपके, परमेश्वर का बुलावट आपके लाइफ पे है, देन गो अहेड, डू इट. You will have a good life. You will have a, you will see great things in your life. But don't jump in ministry just because somebody told you, just because somebody prophesied over your life. These days a lot of people prophesied over you, saying that, oh, I can see, you have a calling over your life. Ask confirmation from God. Read the word of God. Ask God to speak to you personally.
The people speak. And I am not against prophets. I am not against any men of God who speak for your life. A lot of people spoke about me when I was just in sixth grade. People spoke to me and I said, you will be traveling all over the globe. वो तो मैंने शेयर ही नहीं किया, है ना, वो सारी बातों को मैंने बताया ही नहीं. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस समय में मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे साथ कैसे होगा, मैं तो धारावी के झोपड़े में पैदा हुआ हूँ. लेकिन आज देखो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है ना. अगर परमेश्वर का बुलावट है तो ही आप मिनिस्ट्री में आइए. अदरवाइज प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूँ, आप आपका काम करिए. अगर आपको परमेश्वर ने एज एन इवेंजलिस्ट बुलाया है, काम करते हुए परमेश्वर की सेवा करें, है ना. डोंट गेट इनटू पास्टरल मिनिस्ट्री just because somebody told you. Otherwise, you will cry in future. Yes, Pastor. Even though I didn't wanted to say anything, but as you were sharing, I remember that as you said कि बहुत सारे worshippers just आजकल overnight prophets हो जाते हैं, overnight apostles हो जाते हैं. Like like वो देख के हम समझ सकते हैं कि where their heart is. Like nowadays apostles and prophets अगर आप रखोगे तो बहुत ज़्यादा meetings आपको मिलेंगे. So yeah, so we have to be beware of such people. मैं यही बोलना चाहूंगा, जितने लोग देख रहे हैं, जो व्यक्ति अपने नाम के आगे में टाइटल्स लगाता है, उससे आप मतलब अगर रातों रात वो अपना टाइटल को चेंज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक व्यक्ति अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा देता है ना. एक समय में वो पास्टर था, एक समय में वो इवेंजलिस्ट था. एक इवेंजलिस्ट था तो वो उसके चर्च में अगर आप जाओगे तो देखोगे 10 लोग भी नहीं है, 15 लोग भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर कहता है ना, वो अपने आप को प्रॉफिट कहता है. अपने टाइटल के पीछे भाग रहे. डोंट रन बिहाइंड टाइटल. एज आई सेड बिफोर आल्सो, रन बिहाइंड गॉड, है ना. मेरे पिताजी को मैं बहुत मानता हूँ. यू नो व्हाई? बिकॉज वेन एवर पीपल कॉल हिम, इवन आज भी अगर आप अभी तो चलो थोड़ा सा फोटोग्राफ्स हमने क्लिक किए, अच्छे फोटोज उसके आप देखेंगे मीडिया पे. अदरवाइज यू विल नॉट सी हिम ऑन एनी मीडिया. He's one of the best preacher. He has traveled with one of the best preachers. But he will never call him as a pastor. He will always tell him, नहीं नहीं पास्टर. कोई बोलते ना हमारे सीनियर पास्टर, वो उनको बोलते नहीं 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 नहीं. वो मतलब बी ऑलवेज हम्बल. लेट गॉड लिफ्ट यू, नॉट मैन. आपको आपके नाम के सामने अपोस्टल लगा दिए तो क्या आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हो गए? नहीं 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 नहीं. परमेश्वर को आपको आंसर देना होगा. मैं जब बाइबल कॉलेज कर रहा था तो हमारे बाइबल कॉलेज में एक सर ने हमको बोला, है ना, इवन अ डॉग कैन गेट अ डॉक्टरेट डिग्री टुडे. इवन अ डॉग, लिटरली डॉग. मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना. जानवर. डॉक्टर, डॉक्टर सो एंड सो. So why? What you will achieve from that? Be who you are. Let God lift you up. Be as normal as you can. And I've seen normal people being used powerfully for God's glory. And in same way, if God has called you as an apostle, if God has called you to be a doctor, if God has called you to be a prophet, if God has called you to be a teacher, or pastor, or evangelist, or anything, I am not against it. But don't try to cheat people by all those, glimpses or things that are happening all over the globe. Don't fall for that. Don't run. मेरे को किसी ने ऐसा कहा कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए और बताइए परमेश्वर मेरे को क्या कहता है, मेरे लिए क्या कहता है. मैंने उनको की कहा, मैंने बाबा नहीं हूँ. मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ और आपको बता दूं कि आपके साथ बच्चा, आपका फोन नंबर ये है, आपका ये वो है. नो 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 नो, दैट इज नॉट फॉर अस. लेट गॉड टॉक. And I've spoken to so many people. I don't call myself prophet, but I've seen something for some of my children. This will happen. I spoke to them, and I never like to call myself a prophet. Somebody tell me prophet, it's okay, but you will never see putting prophet so and so or this. No 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 no. If God gives me that title, I will take it. If no, I will not. Yeah, let the tree be known by its fruit. Of course. So, yeah, thank you so much, Pastor, that you have taken your time. आपने अपना कीमती समय निकाला, even though I knew कि आपको जाना है, but आपने समय निकाला. Thank you so much, and I personally been blessed by everything that you have shared, and I believe कि a podcast will be a blessing for others also. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Thank you so much, Pastor Evans Francis, and thank you, Vessel of God podcast team, for Yeah, having me here. And please keep us in your prayers as we are traveling today. And yeah, we would like everybody who's watching
love from Emmanuel Golar and love from Hosanna Church Ministries. And hope to see you all soon. God bless you all. So next time again, we will be back with another vessel that God has been using. As you know, earlier when we started this podcast, it was every week, but now we have changed the release date. So every second and fourth week on Friday evening 7 p.m. it will be launched. So do subscribe to our YouTube channel. And we will be available on all the podcast. Where in the form of audios on Spotify and other platforms, so you can also join us there and be blessed. So for more information you can check out the description below. You will get all the details over there. परमेश्वर आपको आशीषित करे. May God bless you. May his face shine upon you. Keep smiling. Stay blessed. Shalom.